Okay, so let me just quickly revise our last part. Okay, so we have started with the uh, different types of error, okay, present in the ANN model, or you can say different formulas by which we can find the error present in the given ANN model. And in that we have defined the local error and global error. Okay, global error is just the sum of all the local error present in the given model. And as far as our syllabus is concerned, we'll mostly focus on these three types of error. One is sum of squared error, correct? What is the formula of sum of square error? What is the formula of this error? Just consider a difference of targeted minus actual, okay, and then just add all these values. Okay, so this is the sum of square error. What is the formula of mean square error? Okay, what is the formula of mean square error? From this mean you will come to know the formula of this mean square error. So what is the formula of mean square error? Anyone? What is the formula of this? Mean means what? We need to divide the total observation by sum of all the observation by total number of observation. So in case of mean square error, we just need to multiply this value by this, okay, 1 by n, where n is the total number of observation or total number of inputs, we can say, okay, of yt minus y whole square. And what is the root mean square error? The root of mean square error. And now just take the under root. Okay, so these are the formulas that we already covered in our last lecture. And I think we have also considered some examples on this part. Okay, so a simple data is given where we have given the values of y, values of yt, and from that we just need to calculate the SSE, MSE or RMS error present in the given model. Okay, so that is all about our last lecture. And now the next topic which is the weight initialization. Okay, ये भी आपको मैंने last time already explain किया था कि see, at then we need to start with the random weights. Okay, but to consider those random weights, okay, we have some theory. Okay, so that you can so that in minimum number of steps or in minimum number of iteration you can approach to those actual weights present for the given model. Okay, so these are some different rules, we can say, or by which we can select a proper weights for the given model. So I think this part also we have completed, but let me revise it again. So first statement is what? Weight should be small. Okay, तो जो भी weights आप initially consider करने वाले हो, okay, that value should be small. But इसके लिए एक मैं आपको आगे रिजल्ट ही देने वाला हूँ. There are some rules, there are some formulas, mathematical formulas by which we can select, by which we can decide the range for the weights. Okay, तो इसलिए ये पॉइंट आपका ऑलरेडी आगे कवर हो ही जाएगा. ठीक है, सो वेट शुड बी स्मॉल, और एक रेंज ही आपको मैं देने वाला हूँ डायरेक्टली, जिस रेंज में से आपको सारे वेट्स आपको वी हैव टू कंसीडर ऑल दी वेट्स फॉर द गिवन ANN मॉडल. ओके, नेक्स्ट इज वेट शुड नॉट बी सेम. ओके, इक्वल वेट्स अगर आप लेते हो, सो वहाँ पे लर्निंग में प्रॉब्लम आपको या दैट मॉडल विल नॉट एबल टू लर्न. ओके, या उस पर्टिकुलर इनपुट का वहाँ पे या उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए लर्निंग आपकी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड द सेम वेट्स फॉर द टू गिवन इनपुट्स. ओके, सो दैट इज द सेकंड कंडीशन. ओके, weight should not be same. And now third condition is what? Weight or weights should have a good variance. Good variance का मैंने आपको क्या रीजन क्या दिया था लास्ट लेक्चर में? जो भी अगर आपकी रेंज, फॉर एग्जांपल इफ माय रेंज इज से -1 to 1, ओके, सो यू टेक all the weights, okay, from this range, okay, but which have a good variance. Good variance means what? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहला वेट लिया लाइक से -1 या से से 0.9, आपने पहला वेट ये लिया है और डायरेक्टली आप आगे के सारे वेट्स आप क्या ले रहे हो?
9.95, 0.96 लाइक दैट। तो आप देखो यहाँ पे वेरिएंस आपका प्रॉपर नहीं है, ओके इन दोनों में ज़्यादा गैप आ रहा है और बाकी आपने प्रॉपर सिलेक्ट किया, ओके सो इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके इन अ सिंपल लैंग्वेज दोज वेट्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेंज, ओके इस रेंज में जो भी आपकी -1 to 1 की जो रेंज है, इस रेंज में आपको ऐसे नॉर्मली वो सारे वेट्स कंसिडर करने, सो दैट you will get the required output, okay so that is our third condition. Now using these three rules, okay, we can select the weights from the given range. And now what are the rules or what are the conditions by which we can select the range for the given ANN model? So the first formula is what? Uniform distribution, okay. अभी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी ये वर्ड आने वाला है ना यूनिफॉर्म, ओके यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो रेंज वहाँ पे होगी ना वो -a to a ही ये आपको कंसिडर करनी है, बोथ एंड पॉइंट्स आर सेम। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में या यूनिफॉर्म वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे जो रेंज आपको होगी ना वो रेंज आपकी क्या आएगी, -a to a, मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक -4 to 4 लाइक दैट, या सिंपली -1 to 1, बट यू कैन टेक रेंज लाइक दिस -2 to 4, यहाँ पे एंड पॉइंट्स आपके इक्वल नहीं है, सो -a to a, ये भी a चाहिए और यहाँ पे भी a चाहिए लाइक दैट, ओके सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके तो जो आपका लेफ्ट साइड में जितनी रेंज आप लेफ्ट साइड में ले रहे हो, ओके उतनी ही रेंज आपको राइट साइड में भी कंसिडर करनी है, दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रूल? So you can consider a simple ANN model, okay so this is your ANN model जहाँ पे okay let me directly tell you the formula first, okay so in this case how you select the weights, so those weights Wij, it actually belongs to the interval, okay what is that interval, -1 upon under root of ni to 1 upon under root of ni, okay and now what is ni, let me mention here, so what is this ni is actually number of ages in ith layer, okay so for example we know that, okay if this is your input layer, okay this is your first layer, correct, this is your second layer and there are only two layers as far as this ANN model is concerned, okay and question में आपको ऐसे देने वाला, if this same model is there I will ask you this type of question, find weights for first layer using uniform distribution, ये भी 3 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन फिर से सुनो, क्या क्वेश्चन है, फाइंड वेट्स फॉर द, जो जिस लेयर के लिए आपको कैलकुलेट करना है वो लेयर क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट लेयर के लिए कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने वहां पे मेंशन किया कि जस्ट गिव मी द वेट्स फॉर द फर्स्ट लेयर, ओके। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर, 1, करेक्ट। सो बेसिकली फॉर दिस हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, we need to find the weights for the first layer, means what, so what is the value of ni और what is the value of n1, i की वैल्यू 1 है ना, फर्स्ट लेयर है तो i की वैल्यू क्या है यहाँ पे, so this implies i equal to 1. So now you tell me what is value of n1. N1 is what now, what is n1? N1 is the number of edges in the first layer. So can anyone tell me how many edges are there in first layer? How many edges are there in first layer? Yes, फर्स्ट लेयर में कितने एजेस है, कितने वेट, जितने एजेस है उतने वेट्स आएंगे ना। सो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन फर्स्ट लेयर, 6, ओके। यू कैन काउंट लाइक दिस, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। आप देखो यहाँ पे दो इनपुट जा रहे हैं, ओके। सो बेसिकली देयर आर 6 एजेस इन द फर्स्ट लेयर, तो n1 की वैल्यू क्या है, 6. So for this particular question, find the weights for the first layer using uniform distribution. तो आपके रेंज क्या होगी? So for this question, your Wij is actually belongs to what? It actually belongs to -1 upon under root of 6 to 1 upon under root of 6. ओके, दिस इज योर रेंज। तो जो भी वेट्स आपको इनिशियली असाइन करने, आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था, वेट्स एट देन आपको रैंडमली असाइन करने। यहाँ पे ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि
इस एज के लिए ये वेट लेना चाहिए, इस एज के लिए ये वेट लेना चाहिए, ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है. एट द एंड यू नीड टू इनिशिएट वेट्स रैंडमली. बट यहाँ पे बस मैं क्या दे रहा हूँ आपको, मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ जिस रेंज में से ही आपको वैल्यू सिलेक्ट करने, सो दैट यू कैन इजीली और यू कैन क्विकली अप्रोच टू दैट टारगेटेड आउटपुट. ओके, तो उससे आप जल्दी टारगेटेड आउटपुट को अप्रोच कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√6? What is the value of 1/√6? I think let me calculate this. So I think this value is 0.4 something. Okay, so if I calculate, so you have a range like this. Okay, and if I draw this range on a real line, this is your 0 and this is your 0.4, this is your -0.4. तो क्वेश्चन क्या है, आपको मैंने क्या बोला, then find the weights. Okay, और इनिशिएट द वेट्स. ओके, फाइंड भी आ सकता है, इनिशिएट भी आ सकता है. इनिशिएट द वेट्स फॉर द फर्स्ट लेयर यूजिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला था -1/ni to 1/ni. n आई यहाँ पे 1 है क्योंकि फर्स्ट लेयर के लिए कैलकुलेट कर रहा था. तो फर्स्ट लेयर में कितने एजेस थे? 6 एजेस थे. तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? -1/√6 to 1/√6. दैट इज नथिंग बट -0.4 to 0.4. ओके, अब इसके आगे क्या करना है? नाउ टेक और नाउ सिलेक्ट a random 6 weights, क्योंकि यहाँ पे 6 edges थे. Now select a random 6 weights from this range. Okay, that is your final answer. तो ये आपकी चॉइस है. इसके आगे हर एक की चॉइस अलग अलग होगी. बट हाउ यू सिलेक्ट दो 6 weights? क्या क्या कंडीशन है? एनीवन? कौन से कंडीशन से ये 6 weights आपको सिलेक्ट करने? यस, कौन से कंडीशन से आपको ये 6 weights सिलेक्ट करने? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? वेट शुड बी स्मॉल. हाँ, अभी स्मॉल का पार्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपके पास रेंज ही है. ओके, सो दैट कंडीशन इज ऑलरेडी कंसिडर्ड. आपने ऑलरेडी वो कंसिडर की है. नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? इक्वल नहीं आने चाहिए. तो जो भी दो या मतलब ऑल दिस 6 weights मस्ट बी डिफरेंट. ये जितने भी 6 weights आप ले रहे हो ये सारे डिफरेंट चाहिए. ओके, सो वो एक आपको इंश्योर करना है. एंड इट शुड हैव गुड वैरियंस. गुड वैरियंस मतलब आप ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके कंसिडर करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और बाकी सारे वेट्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं. नॉट लाइक दैट. ओके, यूनिफॉर्मली कंसिडर करो. सो फॉर एग्जाम्पल, so since it is open interval we can't take those end points. Okay, so I can start with -0.3. next I can take -0.1. next I can take 0. okay, next I can take 0.25. ऐसा नहीं कि इक्वल रेंज में ही लेना है. ओके, आप वैरी कर जा सकते हो. नेक्स्ट यू कैन टेक पॉइंट से सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ. नेक्स्ट यू कैन टेक 0.31 एंड W6 आई कैन टेक 0.38 लाइक दैट. ओके, सो दिस आर माई इनिशियल 6 weights फॉर दिस गिवन ANN मॉडल. तो ये आपको 3 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आने वाला है. क्लियर? फाइंड द और इनिशियलाइज द weights फॉर द फर्स्ट एज. नाउ you can again see again this formula is not for a particular not for first layer always. ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला आपको बस फर्स्ट लेयर के लिए यूज करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेक्स्ट लेयर के लिए भी अगर आपको वेट्स को इनिशियलाइज करना है वो भी आप कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इन जनरल डिफाइन था. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको फर्स्ट लेयर के लिए यूज करना है. बट आपको एट द एंड देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन फाइंड द वेट्स फॉर द सेकंड लेयर. एक वे आपके पास क्या है, आप रैंडमली ऐसे ही असाइन कर सकते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके. दैट इज द वन अप्रोच. सेकंड अप्रोच, आपको अगर याद है लर्निंग रूल्स में भी हमने वेट्स को इनिशियलाइज किया था, है ना. मतलब एक इनिशियल वेट्स कंसिडर करके हमने बाकी सारे वेट्स हमने कैलकुलेट किए थे. सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे. तो इसके आगे आप लर्निंग रूल्स का यूज करके भी आगे के वेट्स कैलकुलेट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से उनको इनिशियलाइज कर सकते हो. तो ये आपकी चॉइस है. आप लर्निंग रूल से भी जा सकते हो. लर्निंग रूल इज मोर एक्यूरेट दैन दिस. ये जनरली इसका यूज आप करते हो इनिशियलाइज करने के लिए, आपको वेट्स इनिशियलाइज करने. बट अगेन यू कैन कंसिडर दिस इनिशियलाइजेशन फॉर एनी लेयर. नॉट ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट लेयर के लिए कंसिडर करना है, बट जनरली हम फर्स्ट लेयर के लिए कंसिडर करते हैं. बट ऐसा भी नहीं कि आपको फर्स्ट लेयर के लिए ही कंसिडर करना है. यू कैन अगेन कंसिडर द वेट्स फॉर द सेकंड लेयर आल्सो. ओके, टॉपिक समझ में आ रहा है या क्वेश्चन इस पे क्या आने वाला है वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? टेल मी यस और नो. इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, sir. And now next method. Okay,
It is also it is called as Xavier distribution, okay, or Goldratt distribution, okay. तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेज है और फॉर्मूलेज में यहाँ पे रेंज ही आने वाली है, ओके. तो जेवियर में बेसिकली देर आर टू केसेस कैन से. वन इज जेवियर नॉर्मल एंड सेकंड इज जेवियर यूनिफॉर्म, ओके. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय जेवियर यूनिफॉर्म, ओके. आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था यूनिफॉर्म का सिंपल मीनिंग क्या है. It gives you an interval like this, or it gives you a range like this, minus a to a, okay. So let me first tell you the formula for Xavier uniform, okay. तो इसका formula क्या है? So Xavier uniform में your weights is belongs to minus root 6 upon, अभी ये root 6 ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 एजेस थे इसलिए मैंने root 6 लिया है, ठीक है. So it is in general formula, so root 6 upon, this is in general formula, ni plus NO, okay. Let me just change this formula in this fashion. थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूँ इसमें. मैं इसे यहाँ पे ni+1 करता हूँ, okay, and 2 root 6 upon ni plus 1. Just 1 minute. और फिर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा. ni+1, ठीक है. ये o की जगह पे मैं i+1 करता हूँ, ओके. नाउ सो जेवियर यूनिफॉर्म में वेट्स आपके इस रेंज में आने वाले. नाउ कैन एनीवन टेल मी, अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड और इनिशियलाइज द वेट्स, फॉर फर्स्ट लेयर, ओके. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन आई? दैट इज नथिंग बट n1. आई की वैल्यू 1 है ना, सो आई इज 1 फॉर दिस केस. सो व्हाट इज n1? How many edges are there in first layer? How many edges are there in first layer? ये सेम इक्वेशन ही लिया है मैंने, 6, ओके. तो वैल्यू सेम आएगी. सो n1 की वैल्यू क्या है? 6. ni+1 क्या आने वाला है? ni+1 become n2. So how many edges are there in second layer? 3. Okay. So what is this sum? This sum is 9. So in this case your range is root 6 upon 9 to minus root 6 upon 9 to root 6 upon 9. Okay. If I calculate this using calculator, so root 6 upon 9, just 1 minute. Root 6 upon 9 is actually 0.27. Okay, so your range is minus 0.27 to 0.27. This is your range. Now using the similar steps that we perform for the previous case, you have to select a random. अभी आप कौन से केस में कर रहे हो? आप कैलकुलेट कर रहे हो फर्स्ट लेयर के लिए, बट आपने सेकंड लेयर का भी यूज किया है. देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है. यहाँ पे आप फर्स्ट लेयर के ही वेट्स कैलकुलेट करने वाले हो. मतलब आप यहाँ पे W1, W2 अप टू W6 यही वैल्यूज आप कैलकुलेट करने वाले हो, फर्स्ट 6 वेट्स के वैल्यूज. बट वो कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड लेयर का भी यूज कर रहे हो. ओके, तो यही एक ड्रॉबैक आगे के केस में हमने रिमूव किया है. दैट बिकम द अनदर फॉर्मूला. विल कम टू नो लेटर ऑन. ओके, सो व्हाट इज द ड्रॉबैक विद दिस? ड्रॉबैक भी नहीं बोल सकता, बट अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ माई नेक्स्ट लेयर इज अपसेंट, एज्यूम करो इफ माई नेक्स्ट लेयर इज अपसेंट, then how you find the value of ni+1? Yeah, in that case what we can take the value for ni+1. ni+1 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं फिर? If there is no second layer, it means there is no edges. If there is no edges, ni+1 की वैल्यू क्या आएगी? What is this value? 0 obviously. अगर वहां पे एज ही नहीं है तो आंसर क्या होगा उसका? 0. ओके, तो ये एक आप 0 लेके भी आगे कैलकुलेशन कर सकते हो. बट दिस वी कैन से, ओके, जस्ट टू अवॉइड दिस, एक और आगे फॉर्मूला आ रहा है जिसमें हमने बस इस पार्ट को रिमूव किया. ओके, यू विल कम टू नो लेटर ऑन. ओके, दैट विल बी आवर थर्ड फॉर्मूला. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जेवियर यूनिफॉर्म में फॉर्मूला आपका क्या है? -√6 अपॉन ni+1. ni is the number of edges in first layer, ni+1 is the number of edges in the next layer, और ni+1 और n2 है ना. अगर i1 आता है तो n2 में जितने edges है वो आपको कंसिडर करने. then you will get a range, and from that range you have to just select the random 6 weights. But what is the condition? Those weight
should not be same, and they must have a good variance. Okay, so like that we have to select those 6 weights. So this is all about your Xavier uniform. Now next part is Xavier normal. तो जहाँ पे भी नॉर्मल वर्ड आता है ना, नॉर्मल में रेंज आपकी 0 से स्टार्ट होती है, इतना बस याद रखो. और 0 to सिग्मा. सिग्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, इफ यू डोंट नो, यहाँ पे इतना कुछ उसका रोल नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन. ओके, इफ यू रिमेंबर. सो नॉर्मल और Xavier नॉर्मल में आपकी जो रेंज आती है वो आती है 0 to सिग्मा. करेक्ट. सो 0 मतलब एक पॉइंट आपके पास है, बस आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है. और सिग्मा का फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन ni प्लस ni प्लस 1. ये o की जगह पे मैं i प्लस 1 लेने वाला हूँ. दैट इज द ओनली चेंज. ओके, सो व्हाट इज द सिग्मा एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न. सो 2 अपॉन ni प्लस 1. सो इन दोनों के एडिशन क्या है, 9. ओके, so under root of 2 by 9 is what? Under root of 2 by 9 is actually 0.47. So as far as normal distribution is concerned, your range is 0 to 0.47. तो यहाँ से आपको 6 weights को from this range we need to initiate or we need to consider the 6 weights for this given NN model. Clear? कुछ नहीं, इसमें बस रेंज कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज है, और बाकी आगे आपको पता ही है. उस रेंज में से आपको बस 6 वेट्स कंसिडर करने. वो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग पार्ट, मतलब एवरी स्टूडेंट कैन सिलेक्ट देयर रैंडम वेट्स. ओके, बट आपको मार्क्स मिल जाएगा. ऐसा नहीं कि आपको मैंने पहले क्लियर किया, एट द एंड दैट पार्ट इज दैट कंसिडरेशन इज रैंडम, है ना. जो इनिशियलाइज आप कर रहे हो वो रैंडम ही होगा, तो वो हर एक का आंसर अलग अलग आ सकता है वहां पे. ओके, क्लियर हो गया. Xavier में 2 पार्ट है, Xavier नॉर्मल एंड Xavier यूनिफॉर्म. Xavier यूनिफॉर्म में माइनस रूट 6 अपॉन ni प्लस 1, और Xavier नॉर्मल में 0 to सिग्मा, वेयर सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन ni प्लस 1. ni इज नंबर ऑफ एजेस इन ith लेयर. रिमेंबर लाइक दिस. ओके, एंड नाउ द लास्ट केस इज ही इनिट टेक्निक. ओके, तो जो ड्रॉबैक था प्रीवियस केस में, क्या ड्रॉबैक था कि अगर नेक्स्ट लेयर एब्सेंट है तो ऑटोमेटिकली ni प्लस 1 की वैल्यू 0 आ जाती है. सो देयर इज नो रोल ऑफ दिस नेक्स्ट नंबर ऑफ एजेस इन द नेक्स्ट लेयर. ओके, सो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे सिमिलर फॉर्मूला है, बस क्या चेंज किया है, कंसिडर दैट वैल्यू एज 0 डायरेक्टली. ठीक है, तो अगर नेक्स्ट लेयर एब्सेंट है, इसमें प्रॉब्लम थी ना, तो इसको ही उन्होंने निकाला है डायरेक्टली. ओके, और उनका ये कहना है कि फ्रॉम दिस ऑल्सो यू कैन इनिशियलाइज द वेट्स. ओके, ऐसा नहीं कि आपको ni प्लस 1 की वैल्यू कंपल्सरी कंसिडर करने. अगर आप उसको स्किप भी करते हो, इफ यू स्किप दिस वैल्यू, फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन इनिशियलाइज द वेट्स. ओके, दिस यू विल गेट फ्रॉम द ही इनिट टेक्निक. सो ही इज वन ऑफ द रिसर्चर जिसने ये प्रूव किया है कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू ऐड ni प्लस 1 इन दिस केस. अगर आप नहीं भी ऐड करते हो, और सिंपली इफ यू टेक 0 वैल्यू, देन ऑल्सो और यूजिंग दैट केस ऑल्सो वी कैन इनिशियलाइज द वेट्स. ठीक है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस मैंने ni प्लस 1 की वैल्यू 0 कंसिडर की है. तो यहाँ पे जो रेंज आपकी आएगी, ये आएगी माइनस रूट 6 अपॉन ni की वैल्यू 6 आएगी टू रूट 6 अपॉन 6. और इस केस में आपकी रेंज आ जाएगी 0 to सिग्मा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 by 6 मीन्स 1/3. करेक्ट. सो लेट मी क्विकली रिवाइज क्या क्या पार्ट अभी तक हमने देखा है. ओके, आवर फर्स्ट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट, फर्स्ट क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी रेंज क्या थी, -1 अपॉन, व्हाट इज द रेंज, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ni टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ni. डन. नेक्स्ट जो आपका पार्ट था, ओके, दैट इज Xavier नॉर्मल एंड Xavier यूनिफॉर्म. ओके, सो Xavier, लेट मी फर्स्ट कंसिडर Xavier यूनिफॉर्म. तो Xavier यूनिफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, माइनस रूट 6 अपॉन ni प्लस 1 टू रूट 6 अपॉन ni प्लस 1. एंड इसमें भी जो थर्ड केस थी वो थी Xavier नॉर्मल, है ना. Xavier नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था, इट इज एक्चुअली 0 to अंडर रूट ऑफ
ये टोटल अंडर रूट में है क्या, जैसे हाँ करेक्ट. सो अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन ni प्लस ni प्लस 1. ठीक है. एंड जो थर्ड केस थी या फोर्थ जो केस है ही नीट नॉर्मल एंड ही नीट यूनिफॉर्म में, यहाँ पे बस ni प्लस 1 की वैल्यू 0 लेनी है. ठीक है, तो इजीली याद हो जाएगा. सो दिस आर द डिफरेंट टेक्निक्स. अगेन दिस मेथड्स आर नॉट परफेक्ट. ओके, ऐसा नहीं कि हर इन मेथड से आपको 100% मॉडल आपका फिट हो जाएगा, बट दिस आर द डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच वी कैन इनिशियलाइज द वेट्स फॉर द गिवन एन मॉडल. ओके, सी एट देन वी आर इन एन मॉडल. सो ऐसी कोई मेथड नहीं है जो हम बोल सकते हैं ये परफेक्ट है, इससे सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो एवरी टाइम वी नीड टू मॉडिफाई दिस टेक्निक सो दैट यू कैन मॉडल दोज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. ओके, तो इसमें हमेशा अपडेट होते ही रहेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेट्स इनिशियलाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे 3 मार्क का ही क्वेश्चन आपको आने वाला है, जहाँ पे एक मॉडल में आपको दूंगा डायरेक्टली लाइक दिस. ओके, और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन से लेयर के लिए, फर्स्ट लेयर के लिए या सेकंड लेयर के लिए आपको वेट्स को इनिशियलाइज करना है. जनरली फर्स्ट लेयर का ही होगा. सो इनिशियलाइज द वेट्स फॉर फर्स्ट लेयर यूजिंग हीनिट टेक्निक और यूजिंग जेवियर नॉर्मल, जेवियर यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. वो भी मेंशन होगा कि कौन से रूल से या कौन से टेक्निक से आपको वो करना है. ठीक है, सो इसे 3 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द सेकंड टॉपिक, वेट्स इनिशियलाइजेशन. And now let me, any doubt up to this part, error and weights initialization, any doubt in these 2 topics? Please tell me if you have any doubt, yes or no. Any doubt up to this part, these 2 topics? बोलो जल्दी, यहाँ तक कुछ डाउट्स है? yes or no में तो बोलो एटलीस्ट. any doubt up to this part, एरर में और वेट्स इनिशियलाइजेशन में? इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है. नाउ लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एसोसिएटिव मेमोरी. ओके, यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो व्हाट इज मीन बाय एसोसिएटिव मेमोरी? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट. सो दिस memory is also called as content addressable memory. Okay, you will come to know why we call it as content addressable memory. So this memory is focus more on the content. Okay, so associative memory, it is also called as content addressable memory or CAM. Okay, so why we call it as content addressable memory, we'll come to know. So this type of memory is access. Why we call it as content addressable memory? Because this type of memory is accessed simultaneously and in parallel on the basis of data content rather than by a specific address or location. क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? ये जो मेमोरी है यहाँ पे आप जो भी डाटा आप एक्सेस करने वाले हो, वो डाटा या जो भी डाटा आप स्टोर करने वाले हो, ओके, राइट करने वाले हो या रीड करने वाले हो, कुछ भी कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. ओके, सो दैट डाटा इज स्टोर्ड नॉट विद द लोकेशन और नॉट विद द स्पेसिफिक एड्रेस. आपको अगर पता है रैम में या जनरली जो मेमोरी आप स्टोर करते हो, ओके, वो जो मेमोरी स्टोर होती है वो एक लोकेशन से या एड्रेस से स्टोर होती है. ठीक है, ये जो मेमोरी है, ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है, दिस मेमोरी इज नॉट स्टोर्ड बाय अ स्पेसिफिक एड्रेस और लोकेशन. ओके, ये डायरेक्टली कंटेंट, डाटा कंटेंट से आपकी स्टोर हो जाती है. ओके, सो दिस मेमोरी इज एक्सेस यूजिंग कंटेंट, या अगर आपको वो रीड भी करना है ना, तो आपको डायरेक्टली कंटेंट से सर्च करना है. आपको डायरेक्टली कंटेंट से सर्च करना है, नॉट बाय अ स्पेसिफिक लोकेशन और नॉट बाय स्पेसिफिक एड्रेस. ठीक है, सो दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव मेमोरी. ओके, सो इट इज फोकस ओनली ऑन कंटेंट. इसमें मतलब इस मेमोरी का ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता, ऐसा कोई लोकेशन नहीं होता. ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ एसोसिएटिव मेमोरी. नाउ how memory write a word, how a associative memory write a word. Okay, या अगर आपको एक वर्ड स्टोर करना है उसमें, so how you generally store a word in associative memory. Okay, so when a word is written in associative memory, no address is given. आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था कि इस मेमोरी में कहीं पे आपको मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन या ऐसा कोई स्पेसिफिक एड्रेस गिवन नहीं होता. ठीक है, so when a word is written in associative memory, no address is given. The memory is capable, this memory is capable of finding an empty location to store the word.
ये मेमोरी सिंपली क्या करती है, जहां भी उसको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है डायरेक्टली वहां पे वो वर्ड आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एंड रैंडमली, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक अप्रोच से ही आप वो वर्ड स्टोर करो, जहां पे भी एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है वहां पे वर्ड आपका स्टोर हो जाएगा. सो दिस मेमोरी डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड अ स्पेसिफिक एड्रेस. Okay, so in this way we can store a word, or in this way we can store a content in associative memory. Okay, again I will repeat, when a word is written in associative memory, okay, no address is given. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एड्रेस आप नहीं दे रहे हो, जैसे कि जनरली आप रेगुलर जो मेमोरी आप हैंडल करते हो वहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन से आप उसको स्टोर करते हो, ठीक है. एंड दिस मेमोरी is capable of finding an empty location and store the word. Okay, तो associative memory में अगर आप कोई word store करना चाहते या word store करते हो वो directly empty space में store हो जाता है, okay, without a address or without a location. Now how you read the word in associative memory. Okay, आप उसको read कैसे करते हो, अभी ये तो समझ में आ गया कि आपको store कैसे करना है, but how you read a word in associative memory. So when word is to be read from an associative memory, then the content of the word or a part of the word is specified. For example, if you want to read this word, okay, mathematics, okay, अगर आपको ये वर्ड सर्च करना है एसोसिएटिव मेमोरी में, ठीक है, तो आपके पास अभी कोई लोकेशन नहीं है, आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, या उसका यूज करके आप सर्च भी नहीं कर पाओगे वहां पे. तो हाउ यू सर्च अ वर्ड इन एसोसिएटिव मेमोरी, आपको इसमें से कुछ की पॉइंट्स कंसिडर करने. सो फॉर एग्जांपल जस्ट सर्च अ वर्ड एमएटी, मैट, ओके, बस आप एक एमएटी सर्च करो, आपको सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके एमएटी से स्टार्ट हो रहे हैं. या अगर आप, या आपने देखा भी है पीडीएफ में भी, अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, आप जनरली उसका इनिशियल पार्ट टाइप करते हो तो सारे ऐसे वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं, दोज वर्ड्स, ऐसे सारे वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं जो एमएटी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन रीड अ वर्ड इन एसोसिएटिव मेमोरी. आपने ऑलरेडी ये पार्ट यूज किया है पीडीएफ में, या पीडीएफ में अगर कोई आपको वर्ड सर्च करना है या पेज नंबर सर्च करना है तो जनरली ऐसे केसेस में हम कीवर्ड से ही सर्च करते हैं, ठीक है. सो व्हेन अ वर्ड इज टू बी रीड फ्रॉम एसोसिएटिव मेमोरी, देन अ कंटेंट ऑफ द वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पेसिफाइड. ओके, आप बस क्या करो, एमएटी टाइप करो, यू विल गेट ऑल दोज वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एमएटी वर्ड. अगर आपको और स्पेसिफिक जाना है तो आप चाहो तो एमएटी एचई इतना आप टाइप करो तो और क्विकली आपको वो वर्ड मिल जाएगा, करेक्ट. नाउ next part is the memory locates all words. Okay, वही आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. Thus, so after this the memory locates all words that matches specified content and marks them for reading, है ना. तो अगर आपने MATHE अगर ऐसे टाइप किया तो आपके सामने ऐसे सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो इस वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं या MATHE से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है. सो अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी. So what is the strong point with the associative memory? In this case, memory is not stored with any specific address or location. Okay, generally the data in associative memory is accessed by the data in associative memory is accessed by a content directly. आपको डायरेक्टली कंटेंट से ही उसको एक्सेस करना है, उसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस नहीं होता. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाउ यू जनरली स्टोर अ वर्ड इन अ मेमोरी और हाउ यू जनरली रीड अ वर्ड इन द एसोसिएटिव मेमोरी. एसोसिएटिव मेमोरी में वर्ड स्टोर कैसे होता है या राइट कैसे होता है और आप उसको रीड कैसे करते हो. These are the two different things. So how you write a word in associative memory, just type that word, it is automatically get stored in the empty spaces. जहाँ पे भी empty space है वहाँ पे वो automatic store हो जाएगा. and आप उसको रीड कैसे करते हो, रीड करने के लिए जो आपका वर्ड है या जो भी आपकी मेमोरी है उसका एटलीस्ट उसका we need to write some part of that word, okay, to search that particular word. उसका एक स्पेसिफिक पार्ट या उसका एक कोई पार्ट आपको या उसका एक उसके जो की पार्ट है वो आपको सर्च करना होगा, तभी आपको वो वर्ड मिल जाएगा एसोसिएटिव मेमोरी. फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स वर्ड है वो अगर आपको सर्च करना है तो एटलीस्ट टाइप इनिशियल और एटलीस्ट टाइप इनिशियल 3 लेटर्स है ना, 3-4 लेटर्स आप इनिशियल लेटर्स आप टाइप करो, यू विल गेट दैट वर्ड, ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड वी कैन रीड द वर्ड्स इन एसोसिएटिव मेमोरी. Now this is the, you can say, a block diagram of your associative memory, जहाँ पे सर्चिंग या अगर जो या रीडिंग
हाउ यू रेडी, जो वर्ड आप रीड करते हो उसकी ये प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जांपल ले रहा हो या मैथमेटिक्स वर्ड अगर आपको सर्च करना है उसके लिए आपने बस एमएटी टाइप किया है, ओके, तो एमएटी टाइप करने के बाद सारे प्रोसेसेस कैसे हो रहे बैकएंड पे, तो उसकी ये एक ब्लॉक डायग्राम है. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर एसोसिएटिव मेमोरी. ओके, एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट टेक्स रिलेटिवली लेस टाइम टू फाइंड एन आइटम. ऑब्वियसली है ना, अगर आप वहाँ पे आपके पास 2000 पेजेस की पीडीएफ है, उसमें से आपको बस एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड लाइक से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, तो आपको भी पता है उन 2000 पेजेस में से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्च करना इतना इजी टास्क नहीं है. ओके तो ये तो क्लियर है कि इससे आपका टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है. क्विकली आपको वो सारे पेजेस मिल जाते हैं जहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है. ठीक है, सो इट टेक्स रिलेटिवली लेस टाइम टू फाइंड एन आइटम बेस्ड ऑन द कंटेंट रादर देन बाय एन एड्रेस, है ना. एड्रेस या उस एड्रेस फॉर एग्जांपल पीडीएफ के लिए आपका एड्रेस क्या होगा, पेज नंबर हो सकता है. ठीक है, तो वहां से सर्च करना डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको अगर वो वर्ड सर्च करना तो उससे क्विकली आपको मिल जाएगा. सो इट टेक्स रिलेटिवली लेस टाइम टू फाइंड एन आइटम बेस्ड ऑन द कंटेंट रादर देन द एड्रेस. बट इसका एक ड्रॉबैक है. इसका ड्रॉबैक क्या है, ये इसकी जो कॉस्ट है ना, ओके, इट इज एक्चुअली इट इज हाई कॉस्टली. ओके, ये मतलब सारे केसेस में आप यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट. ओके, सो you will come to know later on what is the difference between associative memory and your regular memory. Okay, and now let me explain the block diagram of your associative memory, how it actually work. Okay, so इसमें आप देखोगे there are basically 4 section. ओके, फर्स्ट इज आर्ग्यूमेंट रजिस्टर. ओके, आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में बेसिकली क्या होगा, जो वर्ड आपको सर्च करना है. फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना था मैथमेटिक्स, तो वो वर्ड आपका आ जाएगा आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में. की रजिस्टर में क्या होगा, की रजिस्टर में आपको पता है कि उस वर्ड के आपको हैव टू कंसीडर सम पार्ट ऑफ दैट वर्ड, है ना. सो की रजिस्टर में बस मैं क्या करूंगा, आई विल सर्च ओनली एमएटी. पूरा वर्ड टाइप करने की जरूरत है, बस मैं उसमें टाइप करूंगा एमएटी. सो थर्ड ब्लॉक में की रजिस्टर में उसका जो सम पार्ट, जस्ट कंसीडर अ सम पार्ट ऑफ दैट वर्ड. नाउ एसोसिएटिव मेमोरी अरे में या इस सेक्शन में क्या होगा, आपके पास सारे ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जो एमएटी से स्टार्ट हो रहे हैं. आपके पास ऐसे सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो एमएटी से स्टार्ट हो रहे हैं. तो जो जो मैच कर रहा है उसका आउटपुट आपका 1 होगा, जो मैच नहीं कर रहा है उसका आउटपुट आपका क्या होगा, 0 होगा. सो लाइक दैट it is work. Okay, let me explain with one example. Okay, so what is argument register? Argument register में क्या होता है, इस सेक्शन में क्या होता है, it contains the word which we have to search, है ना. जो वर्ड it contain a word जो हमें सर्च करना है. की रजिस्टर में क्या होता है, this specifies which part of the argument word needs to be compared. For example mathematics है तो आप बस मैथ को कंपेयर करने वाले हो, तो that part comes under key register. This specifies which part of the argument word needs to be compared with the words in the memory. Okay, if all bits in a register are 1, for example इसका मीनिंग क्या होता है, for example MAT mathematics. Okay, इफ ऑल बिट्स रजिस्टर आर 1, तो की रजिस्टर में फॉर एग्जांपल अगर मुझे एमएटी सर्च करना है तो मैं एम का आउटपुट क्या देने वाला हूं, आई विल गिव यू दिस आउटपुट एज 1 और बाकी सारे आउटपुट में क्या दूंगा, 0 दूंगा जितने भी है. ठीक है, सो इफ ऑल बिट्स रजिस्टर आर 1, जितने भी बिट्स है ना, m is one of the bit, a is one of the bit, t is one of the bit. If all bits register are 1, the entire word should be compared. अगर मैं पूरा वर्ड लिख लेता हूं तो पूरा वर्ड आपका कंपेयर हो जाएगा. ओके, या else only bits having 1 will be compared. तो अगर मैंने फर्स्ट 3 लेटर्स को ही 1 1 कंसीडर किया तो बस MAT ही सर्च होने वाला. So in this way we'll assign that is the work of key register. Okay, now associative memory array, जो थर्ड सेक्शन था, it contains the word which are to be compared with the argument word. Okay, तो यहाँ पे आपको वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, करेक्ट. एंड नाउ मैच रजिस्टर में क्या होगा, इसमें तो वो सारे वर्ड्स है ना, एसोसिएटिव मेमोरी में वी हैव ऑल दोज वर्ड्स, मैथमेटिक्स वर्ड भी होगा या ऑल सारे पॉसिबल वर्ड्स इसमें रहेंगे. बट उसके बाद मैच रजिस्टर में से आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आफ्टर द मैचिंग प्रोसेस, द बिट्स करस्पॉन्डिंग टू मैचिंग वर्ड इन मैच रजिस्टर आर सेट टू बी 1. ओके, तो मैच रजिस्टर में फ्रॉम दिस एसोसिएटिव मेमोरी आपको वैसे ही वर्ड्स मिल जाएंगे जो परफेक्ट मैच हो रहे हैं, या आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो एमएटी से स्टार्ट हो रहे हैं.
इसमें सारे वर्ड्स आने वाले एसोसिएटिव मेमोरी अरे में, ओके। और मैच रजिस्टर में आपको ऐसे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो एमएटी से स्टार्ट हो रहे हैं, विल गेट ऑल द वर्ड्स विच स्टार्ट फ्रॉम एमएटी, ठीक है। सो लेट मी अगेन शो यू दिस ब्लॉक डायग्राम, ओके। इसका वर्किंग भी आपको आ सकता है एग्जाम में। आर्गुमेंट रजिस्टर में क्या होगा, जो वर्ड आपको सर्च करना है दैट कम्स अंडर आर्गुमेंट रजिस्टर। की रजिस्टर में अगर आपको उसका स्पेसिफिक पार्ट सर्च करना है, लाइक से एमएटी फर्स्ट 3 लेटर अगर आपको सर्च करने, दैट यू कैन कंसीडर इन की रजिस्टर, ओके। एसोसिएटिव मेमोरी अरे यहाँ पे वो दिस इज योर टोटल मेमोरी, इसमें वो सारे वर्ड्स है, ओके। बट अगर आपने एमएटी को सर्च किया है तो वो सारे मैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मैच रजिस्टर में आपको सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो एमएटी से स्टार्ट हो रहे हैं। सो लाइक दैट, और दिस इज द वर्किंग ऑफ योर एसोसिएटिव मेमोरी। नाउ ओके, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी लिया है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये बिट सर्च करना है ना, सो दिस इज माय आर्गुमेंट रजिस्टर। आर्गुमेंट रजिस्टर में जो पार्ट आपको सर्च करना है वो आपका जाएगा आर्गुमेंट रजिस्टर में। तो मैंने क्या किया है, मुझे बस इसके फर्स्ट 3 लेटर ही सर्च करने थे, इसलिए मैंने की रजिस्टर में क्या किया है, इन फर्स्ट 3 लेटर का आउटपुट मैंने 111 सेट किया और बाकी सबका मैंने क्या सेट किया है, 0 सेट किया है ना। तो इसलिए अभी इसके आगे क्या होगा, विल गेट ओनली दोज वर्ड्स whose इनिशियल पार्ट इज 101, है ना, क्योंकि आपने इसको 11 सेट किया और बाकी सबको 0 सेट किया। तो इसके आगे 101 के ही सारे वर्ड सर्च होने वाले, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, 100, है ना। ये प्रोसेस जाएगी आपकी मेमोरी में, ओके। और मैच रजिस्टर में क्या होगा, मैच रजिस्टर का आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर क्या है, 0। वाई इट इज 0, क्योंकि इट इज नॉट स्टार्टेड विद दी 101। सो मैच रजिस्टर में आपको मिलेगा 0। वर्ड 2 के लिए दिस वर्ड स्टार्टेड विद 101, तो मैच रजिस्टर में इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस एसोसिएटिव मेमोरी। सो अगेन रिमेंबर, इन एसोसिएटिव मेमोरी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। In associative memory, the important part is what? In associative memory, will store a word not by a specific address or location, but will store by a content, or will search a word by a content, okay. And this is the process. Now this is the advantages and disadvantages of this associative memory, okay. Obviously the advantages क्या है, searching process is very fast, can't compare actually with the other memory, okay. Suitable for parallel search, है ना suitable for a parallel search, एक टाइम पे आप पैरेलल वर्क भी आप इसमें कर सकते, पैरेलल सर्चिंग भी आप इसमें कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉस्टली देन योर मेन मेमोरी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई we have some restriction on this associative memory, okay. It is more costly. And now there are 2 types of this associative memory. Following are the 2 types of this associative memory. One is auto associative memory and second is hetero associative memory, okay. So at least एक तो हमारा हो जाएगा आज के लेक्चर में, and then remaining part will take in the next lecture. So what is auto associative memory? Auto associative memory is capable of retrieving a piece of data only from partial information of that piece of that data, ठीक है। So for example, okay, let me give you one simple example. Okay, आपका टारगेट क्या है, आपको स्क्वायर को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि आपको स्क्वायर को सर्च करना है। ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में अगर आप उसका एक उसका सेम पार्ट, सेम पीस का, उसका अगर आप एक आधा पार्ट भी देते हो, इफ यू जस्ट कंसिडर दिस, ओके, आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, यू विल गेट द टोटल स्क्वायर. सो it retrieve that whole piece of data just from a partial information of that same piece of data. Okay, for example अगर आपको ट्रायंगल को सर्च करना है, ओके, ये आपका फाइनल टारगेट है, ओके, तो अगर आप इतना भी कंसिडर करते हो, सो यू विल गेट द आउटपुट एज ट्रायंगल. सो ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में जो भी डाटा आपको सर्च करना है, जो भी पीस ऑफ डाटा आपको सर्च करना था या रिट्राइव करना था, उसके अगर आप पार्शियल इंफॉर्मेशन भी देते हो तो भी आपको वो पूरा या यू विल गेट दैट होल पीस ऑफ डेटा यूजिंग दिस ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी. ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है यहाँ पे जो मतलब आप देखो, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्क्वायर सर्च करना है तो मैं स्क्वायर का ही पार्ट यहाँ पे दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये सेम डाटा पे ही वर्क कर रहा है. हेटेरो में ऐसा, हेटेरो में क्या हो जाएगा, इससे पैरेलल. फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेटेरो में क्या होगा, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू दिस
तो यहाँ पे हेट्रो में इन दोनों में कंडीशन क्या है देखो, अगर मुझे स्क्वायर को सर्च करना था तो स्क्वायर का ही पार्ट मुझे यहाँ पे देना होगा, ओके। अगर मुझे ट्रायंगल को सर्च करना तो ट्रायंगल का ही पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये सेम मतलब दिस बोथ आर सेम, ये एक पे ही वर्क करता है, एक डाटा पे ही वर्क करता है। हेट्रो में ऐसा नहीं होने वाला। हेट्रो में ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को पैरेलल या सिमिलर जितने भी सारे पैटर्न है, मे बी ये भी एक पैटर्न हो सकता है, वो सारे पैटर्न भी सर्च हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर मुझे ये अगर मैं सर्चिंग में डालता हूं, सो ऑटो में क्या होगा, ऑटो में you will get this, you will get a proper triangle, but this result you will get in auto associative memory। but अगर आप हेट्रो में कंपेयर करते हो तो हेट्रो में भी आपको ऐसे सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे विच आर सिमिलर टू दिस। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता है, ओके, और ये भी आ सकता है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी। हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, ऐसे सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे विच आर सिमिलर टू दिस। ऑटो में क्या होता है, ये जिसका भी सबसेट था वी कैन से, है ना, ये जिसका भी सबसेट है वो पार्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। दिस इज द सबसेट ऑफ ट्रायंगल, यू विल गेट अ ट्रायंगल डायरेक्टली। सो इट रिट्राइव अ पीस ऑफ डाटा ओनली फ्रॉम अ पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीस ऑफ डाटा, ओके। और ये आपको मैथमेटिकली भी मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करके देने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक पार्शियल इंफॉर्मेशन भी है उस पर्टिकुलर इनपुट की या उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की या डाटा की, तो भी आप उस वर्ड को या उस टोटल डाटा को आप सर्च कर सकते हो। मैथमेटिकली भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अ न्यूरल नेटवर्क which uses or which are neural network using this auto associative memory are called as auto associative memory network। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जिस न्यूरल नेटवर्क में आप ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करते हो या इस एल्गोरिथम का यूज करते हो, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क, ओके। एंड हाँ, so I will explain the algorithm, okay। ये मैथमेटिकली भी इजी है, ये आपको समझ में भी आ जाएगा, okay। So as shown in the following figure, the architecture of auto associative memory network has n number of input and n number of output। यहाँ पे कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, number of inputs and number of output must be same, number of inputs must be equal to number of outputs, okay। With this condition I am going, and now let me explain the simple algorithm of this auto associative memory। So for training this network is using Hebb और डेल्टा लर्निंग रूल, ओके। तो जो वेट्स आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें आप हेब का भी यूज कर सकते हो, डेल्टा लर्निंग रूल का भी यूज कर सकते हो, और एक वे कैलकुलेट करने का जो मैं आज के इस एल्गोरिथम में आपको एक्सप्लेन करने वाला मैंने और करके दे दिया, ओके। एंड वी हैव वन मोर वे टू फाइंड वेट्स फॉर दैट गिवन नेटवर्क, ओके। सो नाउ लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द एल्गोरिथम। सिंपल है, जो आपने ऑलरेडी परफॉर्म भी किया है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, we have to initialize the weights, so you can initialize with the zero weights, है ना, set all the initial weights to be zero। now for each input vector we need to find the weights, है ना, जितने input vector है उतने weights आपको calculate करने हैं। so for each input vector we need to find the weights। so wij new is equal to wij old plus x into yj, ये हेब रूल होता है। बट इस टॉपिक में अभी मैं हेब रूल यूज नहीं करने वाला हूँ, मैंने एक और एक स्टेटमेंट दिया है, so I will use this rule। so this is also one of the way by which we can find weights for the given model। so यहाँ पे SI बेसिकली क्या है, SI is simply the input, this is simply the input, okay। so same input को ही ट्रांसपोज और मतलब SI अगर आपका इनपुट है, so just take a transpose and multiply with the same vector, okay। ये ट्रांसपोज आपने इसलिए लिया है क्योंकि वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना था। यू विल कम टू नो लेटर ऑन, या मैं आपको मैथमेटिकली सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको ये समझ में आ जाएगा। सो सेम इनपुट या एक ही इनपुट है आपके पास, हियर वी डोंट हैव आउटपुट, जस्ट फ्रॉम दैट इनपुट वी कैन फाइंड द वेट्स। सो दैट वैल्यू इज समेशन ओवर आई SI ट्रांसपोज इनटू SI। यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस SI। SI इज अ सिंपली इनपुट, बट ये कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी आपके पास वेट्स आ गए, है ना। एज्यूम करो आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क है, ओके, जिसमें इनपुट आपके पास होगा क्योंकि SI इज गिवन, दिस पार्ट इज ऑलवेज गिवन, इनपुट इज ऑलवेज गिवन। इनपुट आपके पास था, वहां से आपने वेट्स कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अब अभी आपको क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड नेट इनपुट,
तो स्टेप 3 में आ जाएगा नेट इनपुट, और नेट इनपुट के बाद आपको फाइनल आउटपुट कंसिडर करना है, और फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन, है ना. सो y इज इक्वल टू, सो दिस द एक्टिवेशन फंक्शन एज फार एज ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी इज कंसर्न. सो व्हाट इज दैट एक्टिवेशन फंक्शन? इट टेक्स वैल्यू 1 व्हेन z इज पॉजिटिव, इट टेक्स वैल्यू 0 व्हेन z इज 0, एंड इट टेक्स वैल्यू -1 व्हेन z इज नेगेटिव. ओके, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन मैंने क्या लिया है, 1 व्हेन z पॉजिटिव, -1 व्हेन z नेगेटिव, एंड 0 पे मैंने 0 ही रखा है. या आप चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट. ओके, बट ये एल्गोरिथम हमने अभी फिक्स किया एज फार एज ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी इज कंसर्न. ओके, एंड नाउ लेट मी टेक अ लास्ट एग्जांपल ऑन दिस. एक एग्जांपल लेता हूँ, देन विल स्टॉप. एग्जांपल ये ट्रिवियल है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. ओके, यह क्वेश्चन आपको 3 और 5 मार्क के लिए एग्जाम में आने वाला है. सो अभी मिड टर्म एग्जामिनेशन में, सो प्लीज़ बी फोकस. अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बोलो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. बट मैथमेटिकली इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये पार्ट आपने ऑलरेडी लर्न किया है. बस यहाँ पे एक एल्गोरिथम हमने ऐड किया है, दैट इज नथिंग बट ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी. अदरवाइज प्रोसेस आपके सिमिलर है, सेम वर्किंग है. किसी भी न्यूरल नेटवर्क में आप पहले वेट्स कैलकुलेट करते हो, नेट इनपुट कैलकुलेट करते हो, फिर आप फाइनल आउटपुट कैलकुलेट करते हो यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन. तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको दी है. वेट्स कैसे कैलकुलेट करना है वो भी एक्सप्लेन किया है. वेट्स आप कैलकुलेट करने वाले यूजिंग दिस फॉर्मूला S ट्रांसपोज इनटू ES. ओके, वेट्स आप ऐसे कैलकुलेट करने वाले हो. एक्टिवेशन फंक्शन भी मैंने एक्सप्लेन किया है. इट टेक्स वैल्यू 1 व्हेन z इज पॉजिटिव, इट टेक्स 0 व्हेन z इज 0, इट टेक्स वैल्यू -1 व्हेन z इज लेस देन 0. आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज इनफ टू कंप्लीट दैट ANN मॉडल. नाउ लेट मी रीड दिस क्वेश्चन. ट्रेन द ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क फॉर द इनपुट वेक्टर दिस. आपको मैंने पहले बोला था इनपुट वेक्टर गिवन होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट इनपुट वेक्टर. आल्सो टेस्ट द नेटवर्क फॉर सेम इनपुट वेक्टर. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इसके लिए कंप्लीट करो, फिर इसी इनपुट के लिए एक बार टेस्ट भी करो. टेस्ट करो मतलब टेक दिस एज ए इनपुट एंड चेक करो कि आउटपुट आपको क्या मिलता है. टेस्ट द ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क विद 1 मिसिंग. उसके बाद वो जो भी आपका मॉडल है वो आपको चेक करना है फॉर 1 मिसिंग वैल्यू. 1 मिसिंग वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर -1 मिस हो रहा है तो वहाँ पे 0 आपको लेना है. दिस इज नथिंग बट 1 मिसिंग. तो ये 1 मिसिंग ये भी हो सकता है, 1 मिसिंग ये भी हो सकता है. 1 मिसिंग मतलब किसी एक नंबर को 0 लेके आप चेक करो. 1 मिसिंग का मीनिंग क्या है, देयर आर 4 वैल्यूज. 4 वैल्यूज में से किसी भी एक नंबर को आपको 0 लेना है, देन यू हैव टू चेक. 1 मिस्टेक, या भी बाइपोलर का क्वेश्चन है. 1 मिस्टेक मींस व्हाट, यहाँ पे -1 था तो बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 भी आ सकता है. बाइपोलर मतलब आइदर बाइपोलर है तो आइदर -1 एंड आइदर 1. ओके, आप 0 भी ले सकते हो इसमें, मतलब यू कैन टेक जस्ट द अदर वैल्यूज. सो -1, 0 एंड 1. तो अगर वहाँ पे -1 है तो आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो. यहाँ पे 1 है तो आप 0 और -1 ले सकते हो. तो 1 मिस्टेक मीन्स व्हाट, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे -1 की जगह पे 1 मैंने कंसिडर किया, दैट इज 1 मिस्टेक इन दिस गिवन ANN मॉडल. तो इस हिसाब से आपको ये चेक करना है सारे केसेस में. 1 मिसिंग में चेक करना है, 1 मिस्टेक के लिए चेक करना है, 2 मिसिंग के लिए चेक करना है, 2 मिस्टेक के लिए चेक करना है. दिस इज सो हियर वी आर प्रिपेयरिंग अ मॉडल फॉर दिस इनपुट. इस इनपुट के लिए अभी हमें मॉडल प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन अच्छे से सुनो. इस इनपुट के लिए हमें मॉडल प्रिपेयर करना है. उसके बाद उसको टेस्ट करना है 1 मिसिंग के लिए, 1 मिस्टेक के लिए, 2 मिसिंग के लिए और 2 मिस्टेक के लिए. मिसिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी जगह पे 0 सेट करो, और मिस्टेक का मीनिंग क्या है, जस्ट टेक द अदर नंबर. -1 था तो 1 ले सकते हो आप. ठीक है. सो इन सारे केसेस में हमें उस मॉडल को चेक करना है. सो आई थिंक ये नहीं हो पाएगा. सो आई थिंक दैट पार्ट आई विल टेक इन अ नेक्स्ट लेक्चर. Okay, so the actual example on the auto associative memory that I will take in a next lecture. So here we'll stop today. So आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, what is associative memory. Again, that memory is not depend on location and address. Okay, there are 2 types of this auto associative memory. One is associative memory. One is auto associative and second is hetero associative. उनमें क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट विल सी दिस पार्ट मोर इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैथमेटिकली ये पार्ट समझ में आ जाएगा. ओके, सो विल स्टॉप हियर टुडे. ओके, जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी टेक द अटेंडेंस. ओके, now you can leave this session. Done. Okay, I have taken the attendance. Now you can leave this session. Thank you, sir. Thank you all. I will share this recording also, तो आप बाद में भी इसको चेक कर सकते हैं.
नाही लवकरच लावते आता.